بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ شام ہو چکی تھی۔ اس وقت میرے کلینک میں مریضوں کا رش ہونے لگتا تھا۔ میں ایک مریض کا معائنہ کر رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اندر آیا اور چلانے لگا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میرا ہاتھ کاٹ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ درد کے بارے وہ بمشکل ہی بول پا رہا تھا۔ میں نے اسے ریلیکس رہنے کا کہا اور بیڈ پر لٹا کر اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سے پورا ہاسپٹل ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں اچھے سے دیکھ چکا تھا، اس کے ہاتھ پر کسی زخم کا نشان تک نہیں تھا۔ پھر بھی اس کے درد کی وجہ سے میں نے اس کو پین کلر کا انجیکشن لگا دیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اب بھی مسلسل چلا رہا تھا، میرا ہاتھ کاٹ ڈالو، ایسے یہ درد نہیں جائے گا، میرا یقین کرو، مجھے بہت تکلیف ہے۔ میں پریشان ہو چکا تھا۔ مجبوراً میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ تب جا کر اس کی آہو بکا کچھ دیر کو تھمی۔ میں نے ڈیوٹی ڈاکٹر کو کہا کہ اسے لے جا کر ایکس رے بھی کرواؤ اور باقی ٹیسٹ بھی لکھ کر دیے۔ وہ اس وقت غنودگی میں تھا۔ وہ لوگ اس کے لیے گئے چیک اپ کے لیے۔ 20 منٹ تک اس کی ایک ایکس رے رپورٹ میرے ہاتھوں میں تھی۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ درد سے بلبلا رہا ہے۔ میں نے دیکھا اسے ہوش آ رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ پھر سے تڑپنے لگا۔ اچانک اس نے میرے سرجیکل آلات میں سے ایک اوزار اٹھایا اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس زور سے وار کیا کہ بمشکل میں نے اس کے ہاتھ سے وہ اوزار چھینا۔ اس کی آنکھیں تنی ہوئی تھیں اور وہ اب بھی زور زور سے چلا رہا تھا، اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہاں پر درد ہے، اسے کاٹ دو۔ میں نے اس کی ہتھیلی پر کچھ کٹس لگائے، اس کی پٹی کر دی اور کہا، دیکھو میں نے تمہارے اندر سے وہ چیز نکال دی ہے جس کی وجہ سے تمہیں درد ہو رہا ہے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں حیران رہ گیا جب وہ مسکرانے لگا۔ اب تکلیف کم ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں غور سے اس شخص کو دیکھنے لگا۔ وہ خوش شکل ایجوکیٹڈ بندہ تھا، جینز شرٹ میں ملبوس تھا۔ حلیے سے تو وہ کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا، مگر مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ بلا وجہ اتنا شور کیوں کر رہا تھا۔ اسے آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ اب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے اس کا فون نمبر مانگ لیا۔ جانے کیوں مجھے بہت تجسس ہونے لگا تھا۔ میں اس کے اس رد عمل کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ اس کا نام ایان تھا۔ وہ ایک اچھا خاصا خوشحال کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس دن کے ٹھیک 5 دن بعد وہ پھر سے میرے کلینک میں آ پہنچا۔ آج بھی اس کی وہی آہو بکا جاری تھی۔ چیخ چیخ کر اس نے سارا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ بس یوں ہی بولے جا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب دیکھو دیکھو پھر سے درد شروع ہو گیا، یہاں ہے وہ درد۔ اپنی ہتھیلی کو زور سے دباتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ وہ روتا جا رہا تھا، بھرپور نوجوان تکلیف سے رو رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں تو بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر کس چیز کا درد ہے۔ مجھے پہلے ہی دن شک ہو گیا تھا جب اس کی سبھی رپورٹس کلیئر آئی تھیں۔ مجھے اس نوجوان پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے اسے پین کلر لگانے کی بجائے 1-2 ہلکے سے کٹ اس کی ہتھیلی پر لگائے، پٹی کر دی تو وہ نارمل ہو گیا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب میں کئی کلینکس پر گیا مگر کوئی میرا درد سمجھ نہ پایا۔ آپ واحد انسان ہیں جس نے میری تکلیف کو مانا بھی ہے اور اسے دور بھی کیا ہے۔ میں نے اسے کہا، تم اپنا خیال رکھا کرو، تم کھاتے پیتے نہیں ہو اسی لیے تمہیں درد ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے وعدہ کرتا ہوا چلا گیا۔ دراصل میں سمجھ گیا تھا کہ درد اور تکلیف جس کا وہ ذکر کر کے روتا رہتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں اس کے دماغ میں تھی، اور وہ ایک ذہنی مریض بن چکا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوا تھا یہ تو وہی بتا سکتا تھا۔ اب وہ ہر 3-4 دن بعد میرے پاس آ جاتا اور میں بھی وہی حربہ آزماتا۔ وہ خوشی خوشی واپس چلا جاتا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کرے، مگر وہ میری بات سمجھ نہیں پایا۔ میں اسے
साफ अल्फाज में तो नहीं बता सका कि मैं उसको जो कट्स लगाता हूँ वो तकलीफ तो दे सकते हैं मगर ख़त्म नहीं कर सकते। वो फिर भी मेरे पास ही आ जाता। एक दो बार उसने मुझे अपने घर भी इनवाइट किया मगर मैं वादा तो कर लेता, कभी उसके घर जा न पाता। मैं बिल्कुल भी अपने इस अजीब दोस्त के लिए वक्त न निकाल पाया क्योंकि मेरा काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था जिसकी हर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती थी। वहाँ कुछ भी गलत होता तो मरीज़ मुझे ही कसूरवार समझते, इसीलिए मुझे हर डॉक्टर और नर्स पर नज़र रखना होती और मरीज़ों को अलग अलग देखना पड़ता। काफ़ी सालों की अनथक मेहनत के बाद मैंने ये मकाम हासिल किया था। अब मैं इससे गफलत नहीं बरत सकता था। आयान की तकलीफ़ में अब कुछ कमी आने लगी थी। अब उसके आने का वक्फा बढ़ता जा रहा था। एक दिन काफ़ी अरसा हो गया वो मेरे पास न आया था। मैं खुश था कि शायद उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही, और ये सच ही निकला कि उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही थी। एक दिन उसका ख़त मिला जो कि एक बंदा मेरे कार्ड को देकर गया था। मैंने देखा वो काफ़ी लंबा ख़त लग रहा था। मैंने सोचा घर जाकर आराम से पढ़ूंगा। जब मैंने घर जाकर ख़त खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकती महसूस हुई। मैं आपको आयान का ख़त उसी की ज़ुबानी सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर ज़ैनुल आबदीन। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज भी अपने मसीहाई के पेशे को दिलो जान से सरअंजाम दे रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ख़त क्यों लिखा है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने डॉक्टर्स तो बहुत देखे हैं मगर आपकी बात ही अलग है। किसी भी डॉक्टर ने मेरी तकलीफ़ को नहीं समझा मगर आप समझ गए। आप ही मेरे मसीहा साबित हुए। आपकी तवज्जो और मेहनत ने मुझे इस तकलीफ़ से कुछ देर के सही लेकिन निजात तो दी थी, इसीलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने कई बार मुझसे पूछा था कि मैं क्यों इस तरह दर्द से बिलबिलाता रहता हूँ, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह क्या है। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं इस तकलीफ़ से आज तक निकल नहीं पाया। डॉक्टर साहिब, इस सब के पीछे मेरी मोहब्बत की कहानी है, मेरी अंधी मोहब्बत। जब मैंने लाइबा को पहली बार देखा उस दिन मैं उसकी मोहब्बत में डूब गया था। वो हुस्न जमाल का पैकर थी। घबराई हुई सी वो मेरे रूम में आकर बैठी तो जैसे सारा कमरा उसके हुस्न से चमकने लगा। गंदमी रंगत, लंबे काले बाल और उसके गुलाबी होंठों पर वो तिल। मुझे तो उसका हुस्न ही दीवाना बना गया था कि जब उसने बोलना शुरू कर दिया तो उसकी बातों से भी फूल झड़ने लगे। मैं तो चारों शाने चित हो चुका था। वो मेरे ऑफिस में जॉब के लिए आई थी। वो नौकरी करना चाहती थी मगर मैंने उसे मालकिन बना दिया। जल्द ही मैं अपनी फैमिली को उसके घर ले गया रिश्ते के लिए। वहाँ से सोच विचार के बाद हाँ हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिसे पहली नज़र में चाहा अब वो मेरी होने वाली थी। मैं उसे पाकर हवाओं में उड़ने लगा। वो भी मेरी मोहब्बत के बदले में मुझ पर जान छिड़कने लगी। मेरा ख्याल रखती, मुझे खुश रखती। लाइबा ने मुझे दिलो जान से मोहब्बत दी। एक दूसरे की संगत में हम दुनिया भूल चुके थे। मैं सोचता कि क्या नेकी मेरे अल्लाह को पसंद आई जो मुझे लाइबा जैसी शरीके हयात मिली। मैं समझ ना पाया कि वो मुझे ज़्यादा चाहती है या मैं उसे। मेरी सुबह उस वक्त तक ना होती जब तक मैं उसे देख ना लेता। अगर वो किचन में होती तो मैं बिस्तर से ना उठता। वो कभी मेरी इस आदत पर हंसती, नाराज़ हो जाती कि ये आपकी क्या बच्चों जैसी आदत है, मुझे काम भी तो करने होते हैं। मैंने कहा कि मैं इतने सारे मुलाजिम तुम्हारे लिए ही रखे हुए हैं ताकि तुम अपना सारा वक्त मुझे दो। वो कहती, मुझे आपका हर काम खुद करना पसंद है, मैं नहीं चाहती आपको कोई तकलीफ हो। उसकी बातों से मैं और भी उसका दीवाना हो गया। मेरी शादी को 6 माह ही हुए थे। एक दिन मैंने देखा वो अपने साइड टेबल के दराज में कुछ रख रही थी। मैं ऑफिस से अभी आया था। मुझे देखकर उसने जल्दी से दरवाज़ा लॉक कर दिया और मेरे करीब आकर मुस्कुराती हुई बोली, आज आप जल्दी आ गए। उसने पूछा तो मैंने उसे बताया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ये सुनकर वो परेशान हो गई। वो हर मुमकिन मेरी खिदमत करती थी। मुझे बुखार आ गया था। 2 दिन से मैं घर पर ही था। मैं सोने की कोशिश करता था मगर नींद नहीं आती थी। रात को फिर से मुझे बुखार आया। मैंने आँख खोली तो देखा लाइबा उसी दराज में कुछ देख रही है अपने मोबाइल की लाइट लगाकर। मैंने पुकारा तो वो उछली और जल्दी से अपनी ड्रॉर को लॉक कर दिया।
उस दिन मुझे कुछ अजीब सा लगा कि वो यकदम चौंक क्यों गई। खैर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत संभली तो मैं दोबारा से ऑफिस जाने लगा था। मैं इस बात को भूल चुका था, मगर फिर कुछ दिन के बाद मैंने इस तराज में सर दिए हुए उसे देखा तो पूछ ही लिया, अरे भाई, ये तुम कौन सा खजाना छुपा रखती हो जो दिन रात इसी तराज की पूजा में लगी रहती हो। मेरे तंजिया जुमले पर भी वो हंसती, जो भी खजाना है आपको नहीं बताऊंगी, ना ही आप मुझसे पूछिएगा और ना ही इस तराज को कभी हाथ लगाइएगा। अच्छा बाबा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे खजाने चुराने का। इस तरह बात आई गई हो गई, मगर अब मुझे ये दराज खटकने लगा कि इसमें ऐसा क्या रखा है जो मैं नहीं देख सकता। खैर एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं जल्दी घर वापस आया कि लाइबा को आज डिनर पर ले जाऊंगा। मैं कमरे में आया तो वो वहां नहीं थी। मैंने वॉशरूम में भी चेक किया मगर वो वहां भी नहीं थी। मैंने टेरेस पर आकर देखा तो वो घर की पिछली तरफ जो लॉन्ड्री का हिस्सा बना था वहां पर कपड़े धो रही थी। मैंने भी उसे बुलाना मुनासिब नहीं समझा। चलो जब तक वो फ्री हो मैं कुछ आराम कर लूं। मैं लंच ऑफिस में ही कर लेता था। बेड पर लेटा तो मेरी नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ी। वो खिलाफे मामूल खुला हुआ था। शायद इसे तवक्की नहीं थी कि मैं इस वक्त घर आ सकता हूँ। मैंने तजस्सुस के मारे दराज खोली तो मैं हैरान रह गया। उसमें कुछ ज्वेलरी और कुछ खतूत पड़े हुए थे। मैंने ना चाहते हुए भी एक खत उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया। काश कि वो खत मैं ना पढ़ता। काश उस दिन मेरी बीनाई चली जाती। वो खत नहीं था डॉक्टर साहिब, वो मेरी बर्बादी थी। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी शहजादी कैसी हो, उम्मीद करता हूँ मुझे याद करती होगी। मैं भी तुम्हारी यादों के सहारे अभी तक जिंदा हूँ। इस खत में बहुत कुछ प्यार मोहब्बत की दास्तानें लिखी गई थी। अपनी तड़प के किस्से सुनाए गए थे। आखिर में लिखा था, मैं तुम्हें लेने एक दिन जरूर आऊंगा। बस उस दिन तक मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें इस कैद से छुड़ा कर ले जाऊंगा। तुम्हारा शहजादा। मेरी हालत खत पढ़कर बुरी हो गई। माथे पर पसीना आ गया और हाथ कांपने लगे। मैंने एक दो और भी खत पढ़े। इनमें भी वही बातें लिखी हुई थी जो मेरी गैरत को गवारा नहीं थी। जुल्म तो ये था कि इन खतूत पर तारीख भी मेरी शादी के बाद की दर्ज थी। अगर ये शादी के पहले के होते तो मैं फिर भी उसे माफ कर देता, मगर वो मेरी मनकूहा होकर एक गैर के लिए तड़प रही थी। उसकी याद में ये खत पढ़ती रहती थी। उफ, मेरी वालिहाना मोहब्बत का उसने क्या सिला दिया। मैंने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद कर ली। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं उसी वक्त वहां से निकल आया। मैंने सोच लिया कि अब इस बदकार औरत के साथ नहीं रहूंगा, लेकिन अगर मैंने इसे तलाक दी तो इसका तो मसला ही हल हो जाएगा। ये तो चाहती ही यही है कि मैं इसे छोड़ दूं और ये अपने यार से शादी कर ले। मैंने सोचा इसे बेवफाई की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मेरी मोहब्बत इतनी अर्जा तो नहीं थी। मेरी इज्जत के साथ उसने जो खेल खेला था, मैं उसे कैसे माफ करता। मैं वापस गाड़ी मोड़कर घर की तरफ जाने लगा। मैंने एक शॉप से चूहे मार दवा ली और फिर जूस कॉर्नर से मैंने उसका मनपसंद जूस पैक करवाया और वापस आ गया। मैंने कार में ही दवा मिला दी थी इस जूस में। घर आते ही मैंने इसको आवाज दी तो वो चली आई लॉन्ड्री की तरफ से। आप आ गए? मुझे देखकर वो खुश हुई। मुझे उसकी ये एक्टिंग एक आंख नहीं भा रही थी। मैंने सुपार चेहरे के साथ उसको जूस का पार्सल थमाया। वो अपना फेवरेट जूस देखकर मुस्कुराई और हमेशा की तरह उसी वक्त पीना शुरू कर दिया। मैं उसे देखता रहा। उसने जूस खत्म करके अजीब सा मुंह बनाया। उफ, आखिर में ये क्या अजीब सा जायका था जूस में। दिल खराब हो गया। वो डस्टबिन में थूकने लगी। मुझे देखकर बोली, मैं अभी आती हूँ, और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे आ गया। ऊपर कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसके पेट में शिद्दत से दर्द उठा। उसने अपना पेट पकड़ा। जहर बहुत तेज था। मैंने ज्यादा ही मिकदार मिला दी थी। मैं उसे सफाक नजरों से बस देख रहा था। वो मुझे बताना चाह रही थी कि उसे बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं बस उसे देखता ही रहा। तड़पते हुए लाइबा की नजर बेड पर पड़े खतूत पर गई तो उसने मुझे अजीब निगाहों से देखा, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो। शायद वो समझ चुकी थी कि मैंने ही उसे जूस पिलाया था, तभी तो उसकी मदद नहीं कर सका था। लाइबा ने एक हाथ से खतूत की तरफ इशारा किया। मुझे देखकर एक जख्मी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो।
तभी मुझे ख्याल आया कि वो तो मर रही थी। मेरे दिल को कुछ होने लगा। मैंने उसे जान से भी ज़्यादा चाहा था। मैं उसके करीब गया। मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं गई। मैंने अपने प्लान बी पर अमल करना शुरू कर दिया। अपनी जेब से हाथ डालकर मैंने वो बैग निकाला जो मैं उसके लिए लाया था। लाइबा को तड़पता हुआ देखना चाहता था। मैंने वो हवा रोकने वाला बैग उसके चेहरे पर चढ़ा दिया और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में वो साकित हो गई थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो वो खून मेरे उस हाथ की हथेली पर लगा जिसमें दर्द होता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी गर्दन एक तरफ को लड़क गई थी। नहीं नहीं, मैं चिल्लाया। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया। अपनी ही मोहब्बत को जान से मार डाला। मगर अब क्या हो सकता था। उसे कई एक हफ्ता हो गया था। मैंने उस कमरे में भी जाना छोड़ दिया जिसमें उसकी यादें थीं। मैं अपनी जेब में हर वक्त वही चीज़ रखता जिसने उसकी जान ली थी। उसे देख देख कर रोता था। मैंने लाइबा की मौत का सबब यही बताया कि उसने बाहर से खाना मंगवा कर खाया था क्योंकि वो कपड़े धो रही थी और शायद खाना जहरीला था। सबने कहा उस होटल पर केस कर दो, मगर मैंने कहा कि मुझे इल्म नहीं उसने कहाँ से मंगवाया था और क्या खाया था। इस तरह मैंने सबको टाल दिया। मुझे कभी बहुत रोना आता, कभी मैं उससे नफरत करने लगा कि मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। अच्छा हुआ जो मैंने उससे जान छुड़ा ली। सारा दिन इन्हीं सोचों में कट जाता। मगर अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक लड़की मुझसे मिलने आई। वो लाइबा की मैयत पर आई थी। उसने मुझे देखा तो उदासी से मुस्कुराई और मेरा हाल पूछा। वो बोली, आयान भाई, लाइबा मेरी बेहतरीन दोस्ती और मेरी राजदार भी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे आपको ही बताना पड़ेगा कि मैंने उसे अपना कुछ सामान रखने को दिया था। मैंने कहा था कि मैं जल्द वापस लेने आऊँगी, मगर इल्म नहीं उसने आपको बताया था कि नहीं, लेकिन अब वो मुझे चाहिए। क्या सामान था? मैंने पूछा। तभी हिचकिचाते हुए बोली, मेरी ज्वेलरी और कुछ खतूत थे जो मेरे साबिका मंगेतर ने मुझे भेजे थे। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। उसका सर झुका हुआ था और मेरे सर पर तो जैसे आसमान आ गिरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने वही कहा जो मैंने सुना। वह मुश्किल में वहाँ से उठा, लाइबा की दराज से वो सामान लाकर उसके सामने रख दिया। क्या ये है? वो खुशी से उठाने लगी। हाँ, यही है। मैंने कहा, अच्छे से देख लो। मुझे लगा वो पढ़कर देखेगी तो कहेगी ये खत उसके नहीं है, मगर उसने कहा कि ये उसी के खत थे और उसे पढ़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसका मंगेतर इसी पैड पर लिखकर भेजता था। वो चली गई और मैं वहीं बुद्ध की मानद बैठा रह गया। मेरे जिस्म में चिंगारियां सी जलने बुझने लगी थीं। सर से लेकर तलवों तक एक आग लगी हुई थी। मैंने अपना गिरेबान फाड़ डाला। लगता था मेरे कपड़ों में आग लगी है। मैं पागलों की तरह भागने लगा। मेरी आवाज़ें सुनकर मुलाजिम भागता हुआ आया। मैंने कहा, मेरे ऊपर पानी डालो। वो पानी की बाल्टी लाया। उसने पानी मेरे ऊपर डाला तो जलन कुछ कम हुई। फिर मुझे लाइबा का चेहरा याद आया, किस तरह उसने आखिरी वक्त में मेरी तरफ मदद तलब निगाहों से देखा था और फिर सब समझने के बाद शिकायत करती नज़र से देखा। अचानक मेरी हथेली जलने लगी और फिर ना ख़त्म होने वाली तकलीफ़ शुरू हो गई। आगे की कहानी आपको मालूम है। मैंने अपनी जान की जान ले ली। अब मैं एक जिंदा लाश हूँ। रूह तो कब की परवास कर चुकी है। डॉक्टर साहिब, मेरी मगफिरत की दुआ कीजिएगा क्योंकि आपको जब ये ख़त मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। मेरे शक ने मेरी दुनिया तबाह कर डाली। मेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई। बस मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। मैं ख़त पढ़ते ही चौंका। आखिर में जो लिखा था। मैंने उसी वक्त अपनी कार निकाली और उसके दिए हुए पते पर पहुंच गया। काफ़ी लोग वहां जमा थे। मुझे बताया गया कि उसे गुजरे हुए 3 घंटे हो गए हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने एक मुलाजिम से पूछा कि मेरे पास ख़त कौन लाया था। उसने एक आदमी को बुलाया जो उसका ड्राइवर था। मैंने उसे कहा कि मुझे सब बताओ, उसने क्या कहा था। वो बोला, आयान साहब ने मुझे 1 हफ्ता पहले ख़त दिया था और मुझसे वादा लिया था कि जब वो इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये ख़त आपको पहुंचा दूं। तभी मैं आज उनके मरने के बाद दिल गिरफ्तार होकर आपके पास आया। मेरी आंखों में नदामत के आंसू थे। काश मैं उससे मिलने आ जाता। मैंने उससे पूछा कि आयान को क्या हुआ था।
اس نے بتایا کہ کافی دن سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اس رات مجھے فون کیا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے دیکھا وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بولے میرا آخری وقت آ گیا ہے، میری قبر لائبہ بی بی کے ساتھ رکھنا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ چکی تھی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ مجھے ان کے جانے کا افسوس تھا، مگر خوش تھا کہ ان کی موت طبعی تھی، ورنہ پہلے مجھے شک ہوا تھا کہ انہوں نے خودکشی تو نہیں کی، اس نے قتل کیا تھا۔ شک کی بنا پر ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جائے، مگر خودکشی کی معافی نہیں۔ میں ہر پل اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اس کی روح کو سکون ملے اور اسے معافی مل جائے۔ اس کا قصور اس کا بھی تھا، مگر لائبہ بھی قصوروار تھی۔ اس نے شک کا بیج اپنی زندگی میں بویا ہی کیوں؟ اگر وہ اپنی دوست کے خطوط لائی ہی تھی تو آیان کو ایک بار بتانا ضروری تھا، ورنہ شک تو بڑھ کر تناور درخت بن جاتا ہے۔ کاش یہ دونوں یہ غلطی نہ کرتے۔ میری سب سے یہی التجا ہے کہ اپنے جیون ساتھی سے کچھ مت چھپایا کریں، ورنہ شک ہر خوشحال زندگی میں ایسے آگ لگا دیتا ہے جیسے آیان اور لائبہ کی زندگی میں آگ لگی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔